راہ سلیب کے اس سفر میں ابھی ہم گثسمنی باغ میں داخل ہوئے ہیں اور یہاں پر ہونے والی باتوں کو دیکھتے ہوئے ان پر غور کریں گے، خاص کر وہ دعا جو یسوع مسیح نے یہاں گثسمنی باغ میں کی، اور اس دعا میں استعمال ہونے والے الفاظ یعنی خدا تعالیٰ کو باپ کہہ کر مخاطب کرنا، اور پھر اس بات کا مطلب کیا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے۔ یہ کون سی گھڑی یا کون سا وقت ہے جس کے بارے میں آپ باپ سے دعا کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا پیالہ ہے جس کے بارے میں آپ باپ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، اور یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کون سا پیالہ ہے جسے ٹالنے کے لیے بیٹا باپ سے ہم کلام ہے اس سے دعا کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سفر میں آگے بڑھیں، بس یہی عرض کریں گے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیوائن وزڈم کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں، اور ساتھ ہی اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اور یہ سب اس لیے تاکہ راہ سلیب کے اس سفر میں اور کلام خدا کے اور دیگر موضوعات کو سمجھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ اسی طرح سے منسلک رہیں۔ تاہم ابھی ہم گثسمنی باغ میں ہیں، جہاں پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گثسمنی باغ میں داخل ہوتے ہیں اور دعا کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد اس جگہ پہنچے جس کا نام گثسمنی تھا، جس کا لفظی مطلب ہم نے پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے دیکھا، یعنی آئل پریس، تیل نکالنے کی جگہ۔ گثسمنی لفظ کے معنی ایک علامتی حالت ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں جس سے یسوع مسیح اور اس کے شاگردوں کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس باغ میں دو انتہائی معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک تو یسوع مسیح کی دعا اور دوسرا آپ کی گرفتاری۔ شاید اسی لیے ابتدائی کلیسیا کے بزرگ اس باغ کو پہلے باغ یعنی باغ عدن کی صورت میں دیکھتے ہیں، اور پھر یسوع مسیح اپنے باقی شاگردوں میں سے 3 کے ساتھ یعنی پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ کچھ دور آگے جا کر کہتے ہیں، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ یہ وہ شاگرد ہیں جنہوں نے یسوع کے جلال کو دیکھا ہے، اس کی قوت اور طاقت کی انتہا کا نظارہ کیا ہے، اب اس کی ایسی کمزور حالت دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ابھی یہاں پر جان نکلی۔ یسوع کے یہ الفاظ ہیں، میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت آ پہنچی ہے۔ صدیوں پہلے زبور نویس نے مسیحا کی اس حالت کو بیان کر دیا تھا، جہاں زبور نویس لکھتا ہے کہ اے میرے خدا، میری جان میرے اندر گری جاتی ہے، میرا دل مجھ میں بےتاب ہے، اور موت کا ہول مجھ پر چھا گیا ہے، خوف اور کپ کپی مجھ پر طاری ہے، ہیبت نے مجھے دبا لیا ہے، میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں۔ ایلیا کا غم، دکھ اور درد جب انتہا کو پہنچتا ہے تو اس نے خدا سے اپنے لیے موت مانگی اور کہا، بس اب تو اے خداوند میری جان کو لے لے، کیونکہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں۔ لیکن مسیح کے دکھ اور درد تو ہر درجہ، ہر انتہا سے کہیں زیادہ ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ جیسے جان اسی باغ میں نکل جائے گی۔ یسوع مسیح اس طرح کی انتہائی نازک انسانی حالت میں دعا کو مضبوط سہارا مانتے ہیں، اور اسی لیے وہ خود بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو بھی دعا کرتے رہنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس نے یعنی یسوع نے ان سے کہا، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ یونانی کے پیراسموس سے مراد ہے آزمائش، ٹرائل۔ آزمائش بیابان میں ہم نے دیکھی، اور مسلسل آپ کی زندگی آزمائشوں سے گزرتی رہی۔ اب اس موقع پر پھر سے آپ کا ایک ٹرائل ہو رہا ہے، اور یہ اختتام نہیں، اس کے بعد اس ساری رات میں اور بھی کئی ایسے فیسز آئیں گے، کئی ایسے مراحل آئیں گے جن سے آپ فتح مندی سے گزرتے رہیں۔ تاہم ہر مسیح کو یہ چاہیے کہ برائی سے بچنے کے لیے اپنے خدا سے درخواست کرے، ابلیس کی آزمائش سے بچنے کے لیے التماس کرتا رہے، اپنے خدا کے حضور درخواست کرتا رہے۔ مسیحیت کے آغاز سے ہی اس تعلیم کو بہت واضح کر دیا گیا تھا۔ صداقت، راست بازی آزمائش کی راہوں سے گزر کر بالغ ہوتی۔ آزمائش کا آنا خدا کی راہوں پر چلنے کا مضبوط نشان ہے۔ سو یسوع کا بار بار آزمایا جانا اور اس کی الوہیت اور بشریت کا یگانگت میں عام انسان کی طرح دکھ سہنا، تکلیفوں سے گزرنا، جس کے لیے عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے،
वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। जैसे मसीह की मौत से कबल उस पर आजमाइशें आई, वैसे ही जो लोग उसकी पैरवी करते हैं वो भी आजमाइशों से गुजरेंगे। जैसे जैसे हमारे मसीहा की दूसरी आमद नजदीक होगी, दुनिया में ईमानदारों की आजमाइशें बढ़ती जाएंगी। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि आखिरी दिनों में दुख, तकलीफ, गम बहुत बढ़ जाएंगे, रास्तबाज लोग आजमाए जाएंगे। बस इसीलिए आपने अपने शागिर्दों से कहा, जब तुम दुआ करो तो यूं कहना, हमें आजमाइश में ना डाल। मसीह की आजमाइश और उसी तरह से उसके लोगों की आजमाइश का होना लाजमी है। दूसरा हिस्सा यूं है जिसमें यीशु बाप से दुआ करता है और वो उनसे बामुश्किल अलग होकर कोई पत्थर का टापू आगे बढ़ा और घुटने टेक कर यूं दुआ करने लगा। यीशु मसीह का घुटने टेक कर दुआ करना इब्तदाई कलीसिया के लिए दुआ करने का एक तरीका बन गया। इसी हालत में जब दुनिया जान लेने के लिए तैयार खड़ी हो और मरने वाला घुटने टेक कर दुआ करे, ईमानदारों के लिए यह रवायत यीशु मसीह ने डाल दी। लोग स्तिफनस को संसार कर रहे थे और वह दुआ कर रहा था कि ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा। मुकद्दस मरकज के मुताबिक बेटा बाप से दुआ करता है कि ये घड़ी मुझसे टल जाए, इस प्याले को मुझसे हटा ले। लोग सवाल करते हैं, वो जानना चाहते हैं कि ये कौन सी घड़ी की बात है, किस प्याले का जिक्र है। मुकद्दस मरकज इस दुआ को यूं कलम बंद करते हैं, अगर हो सके तो ये घड़ी मुझसे टल जाए, और ये कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मुझसे हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, जो तू चाहता है वो ही हो। जहां तक बात है यीशु मसीह के दुख, दर्द और उसकी सलीबी मौत की, तो ये सब वो पहले से ही जानता है कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो किस तरह की मौत को गले लगाने वाला है। और फिर यूहन्ना में दर्ज है, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, ऐ बाप, मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ऐसा मुमकिन दिखाई नहीं देता कि मौत को सामने देखकर अब आपका इरादा बदल रहा हो, या आप इस आने वाले वक्त को, मौत की इस घड़ी को आगे लेके जाना चाहते हो। क्योंकि अगर ऐसा हो तो आप वहां बैठकर दुआ ना करें और ना ही गिरफ्तार होने के लिए गसमनी बाग में ठहरे रहें, बल्कि अब तक आप उस मकाम को छोड़ चुके होते। आखिर आपने ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए और इनके मायने क्या हैं? इस बारे में जो सबसे ज्यादा इम्कान है वो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर देते। गसमनी बाग में दुख, तकलीफ, गम की हालत अपने इंतहा तक पहुंच चुकी है, जिससे यीशु की मौत बाग में ही हो सकती है। लिहाजा इसलिए बेटे ने बाप से दरख्वास्त की है कि इस घड़ी को टाल, यानी इस वक्त को मुझे गुजारने की ताकत अता कर, ताकि सलीब पर उस वक्त मुझे मौत आए जो उसके लिए मुकर्रर है। शैतान अपनी पूरी कुदरत और ताकत के साथ, पूरे लश्कर के साथ हमलावर हुआ और वो खुदा के मंसूबे के खिलाफ यीशु को सलीब पर जाने से कबल ही कत्ल करना चाहता है। और इब्लीस पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, उसने कई बार अपने हरबों को इस्तेमाल किया है और वो गसमनी बाग में भी ऐसा ही करना चाहता है। और ये बात मजीद समझ में आती जाएगी जब हम इस मकाम को और गौर से देखेंगे और इसमें बाकी होने वाले वाकयात पर नजर करेंगे। यीशु मसीह का आसमानी खुदा बाप को अरामी जुबान में अब्बा कहकर पुकारना गैर मामूली और इंतहाई जज्बाती अंदाजे मुखातिब है। बाप और औलाद के ताल्लुक में इस्तेमाल होने वाला ये आम लफ्ज है, जहां बेटा अपने बाप को मुखातिब करने के लिए अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आम अंदाज में बाप कहकर पुकारता है या अब्बा कहकर मुखातिब करता है। मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे माशरे में बच्चे अपने बाप को मुखातिब करने के लिए कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अब्बू, बाबा, बाबल, पिता, डैड, डैडी, पापा, बिल्कुल इसी तरह से उस जमाने में और आज भी अरामी जुबान में बाप को मुखातिब करने के लिए अब्बा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और हम जानते हैं कि उस जमाने में खुदावंद यीशु मसीह आम लोगों की तरह अरामी जुबान का इस्तेमाल करते। अब ये रोजमर्रा आम इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है जो लोग बाप को मुखातिब करने के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन खुदा ताला से मुखातिब होने के लिए कभी किसी ने इस फ्रेज का इस्तेमाल नहीं किया। ना तो किसी नबी ने, ना पैगंबर ने, ना रसूल ने, ना वली ने, ना किसी खुदा के प्यारे ने। जोसेफ फिट्जमेयर कहता है कि हमें ऐसी कोई शहादत नहीं मिलती, ना ही पहली सदी में और ना ही उससे पहले, ना ही फलस्ती यहूदियों में और ना ही किसी और अक़वाम में, कि जहां कोई खुदा को बाप कहकर मुखातिब करे। ये अनोखा ताल्लुक हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमको अता किया है कि हम आसमानी खुदा बाप को बाप कहकर मुखातिब करते हैं
और वो इसी तरह से अपने बाप से मुखातिब है और दुआ करते हुए कहता है कि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। खुदा ताला को मुखातिब करने का ये अंदाज कलीसिया को यीशु मसीह से नसीब हुआ है। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं, तुम बेटे हो, इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। और फिर आप दुआ करते हुए ये भी कहते हैं, ए बाप इस प्याले को मेरे पास से हटा ले। पहले ये कहना कि ये घड़ी मुझसे टल जाए और फिर ये कहना कि इस प्याले को मेरे पास से हटा ले। दरअसल ये एक यहूदी तर्ज अंदाज है, किसी बात को या ख्याल को मिलते जुलते अल्फाज से दोहराना। अब सवाल ये है कि ये कौन सा प्याला है, इस प्याले से क्या मुराद है। इस बारे में कुछ अहम ख्यालात हैं जिन्हें इख्तिसार से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बारे में मुफस्सिरीन का मानना है कि ये गुस्से या कहर का प्याला या फिर गजब का प्याला है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि किसका गुस्सा या किसका गजब। इस बात को सामने रखना होगा कि किताब मुकद्दस में कई मकामात पर लफ्ज प्याला इस्तारे या मेटाफोरिकली तौर पर इस्तेमाल हुआ है, खुदा के गुस्से के लिए, खुदा के गजब के लिए और खुदा की तरफ से होने वाली सजा के लिए। मिसाल के तौर पर यसाया की किताब में दर्ज है, जाग जाग उठ है यरूशलेम, तूने खुदावन के हाथ से उसके गजब का प्याला पिया। यिर्मयाह नबी इसे यूं बयान करता है, चूंकि खुदावंद इसराइल के खुदा ने मुझे फरमाया कि गजब के मैं का ये प्याला मेरे हाथ से ले ले, इसलिए मैंने खुदावंद के हाथ से वो प्याला ले लिया। हिजकिय्याह की किताब में दर्ज है, तू अपनी बहन की राह पर चली, इसलिए मैं उसका प्याला तेरे हाथ में दूंगा। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तू अपनी बहन के प्याले से जो गहरा और बड़ा है पिएगी। तुम एक शराबी शख्स की तरह लड़खड़ाओगी, तुम मायूस होगी, वो प्याला तबाही और बर्बादी का होगा। ये उस प्याले की तरह होगा जिससे तुम्हारी बहन सामरिया ने पिया था। जकरिया नबी के हाँ ये अल्फाज इस तरह से है, देखो मैं यरूशलेम को और इर्द गिर्द के लोगों के लिए लड़खड़ाहट का प्याला बनूंगा। और जबूर नवीस यूं लिखता है, बल्कि खुदा ही अदालत करने वाला है, क्योंकि खुदावन के हाथ में प्याला है। और फिर मकाशवा की किताब में इस तरह से दर्ज है, गोया ऐसा शख्स खुदा के गजब की मैं पीता है, जो उसके गजब के प्याले में बगैर मिलावट के तैयार की गई है। वो खुदा के कहर की उस खालिस मैं को पिएगा जो उसके गजब के प्याले में भरी गई है। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए और बड़े शहर बाबल की खुदा के हाँ याद हुई, ताकि उसे अपने सख्त गजब के मैं का जाम पिलाए। पहला आदम जिंदा रहने के लिए दुनिया में आया, ना कि मरने के लिए, और दूसरा आदम यानी यीशु मसीह मरने के लिए दुनिया में आया, बनी आदम के लिए अपनी जान फिदिये में देने के लिए आया। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को अपनी म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया क्या मैं उसे ना पीऊं। सो इन हवाला जात की रोशनी में ये मालूम हुआ कि ये प्याला खुदा के गजब का प्याला है, उसकी अदालत करने का वक्त है। सो इस गजब के प्याले को पीने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। ये तो हो गया एक प्रोस्पेक्टिव इस मामले को देखने का, और इसका दूसरा पहलू वो है जहां पहले वाले ख्याल के बरक्स इस प्याले को देखा जाता है। मतलब ये कि कलामे खुदा जहां खुदा के गजब के प्याले का जिक्र करता है, वहीं एक दूसरा मखसूस प्याला है जो अच्छे हिस्से का प्याला है, खुदा की नजात का प्याला है। जबूर नवीस इस बारे में यूं लिखता है कि खुदावंद ही मेरी मिरास और मेरे प्याले का हिस्सा है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है, मैं अपनी नजात का प्याला उठाकर खुदा से दुआ करूंगा। बात सिर्फ यहां तक नहीं, बल्कि एक और प्याले का जिक्र भी है जिसमें मसीही ईमानदार अपने मसीहा के साथ शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, जिसे खुदा की बरकत का प्याला कहा जाता है, जिस बारे में मुकद्दस पौलुस लिखता है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? तो हम अभी ये जानना है कि मसीह यीशु जिस प्याले का जिक्र करते हैं वो कौन सा प्याला है। ज्यादातर मुफस्सिरीन का यही मानना है कि ये मौत का प्याला है। इंतहाई तकलीफ, दुख, दर्द और अजियतनाक मौत के बारे में जिक्र है। मौत का प्याला और मौत का मजा चखना दोनों मसावी तर्ज बयान कहलाते हैं। अबरानियों का मुसन्निफ लिखता है, वो
यानी यीशु मसीह हर एक आदमी के लिए मौत का मजा चखे, यानी मौत के प्याले में से पिए। अभी हमने अर्ज किया कि जहां तक बात है इस लफ्ज की या इस फ्रेज की, यानी मौत का प्याला या मौत का मजा चखना, तो ये हम मायनी अल्फाज हैं। अनाजील में इस इस्तिलाह को कई बार गुफ्तगू का हिस्सा बनते हुए हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक मौके पर यहूदियों ने आपसे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में बदरू है, इब्राहिम मर गया और नबी मर गए, लेकिन तू कहता है कि अगर कोई मेरे कलाम पर अमल करेगा तो वो अबद तक कभी मौत का मजा ना चखेगा। और फिर एक और मौके पर यीशु मसीह याकूब और यूहन्ना से सवाल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। उसने उनसे कहा, जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे। किताब मुकद्दस में कई तरह के बपतिस्मे हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के बपतिस्मों का जिक्र हमने एक और वीडियो में किया है जिसका अनवान है यीशु मसीह ने कितने बपतिस्मे लिए। ये वीडियो हमारे YouTube चैनल डिवाइन विजडम पर मौजूद है। इस वीडियो के लिए ऊपर आई बटन पर आपको एक लिंक दिखाई देगा और फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक बपतिस्मा यूहन्ना बिन जकरिया से मसीह यीशु ने लिया और अभी एक और बपतिस्मे की बात आप कर रहे हैं। ये कौन सा बपतिस्मा है? असल में प्याला और बपतिस्मे को पैरल मायनी में इस्तेमाल किया गया है, यानी मतवाजी मायनी में, जिससे यीशु मसीह अपनी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ यीशु मसीह ने वादा किया कि तुम इस प्याले में से पियोगे, जो प्याला मैं पीने को हूँ। अब ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि ये प्याला तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों के गजब का प्याला था, जिसके बारे में यीशु ने कहा कि तुम भी इस प्याले में से पियोगे। इस बारे में ये जरूर कहा जा सकता है कि वो प्याला जो यीशु मसीह ने पिया उसका बहुत कम या बराए नाम गुस्से या गजब में शागिर्द शामिल थे, और इस सारे वक्त में शागिर्द बस यीशु मसीह के साथ हैं और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, जिससे उनकी शराकत बस इतनी ही है कि वो इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं और अब तक गसमनी बाग में मौजूद हैं। लेकिन असल में ये दुखों का प्याला तो आपने पिया और शागिर्द इसमें यूं हिस्सेदार बने कि वो अपने सामने अपने उस्ताद को, अपने आका को दुख और तकलीफ उठाते हुए देख रहे हैं। लेकिन ये प्याला बेटे ने अकेले ही पिया है। यीशु मसीह के शागिर्द और बाकी सब ईमानदार ईमान के सबब यीशु मसीह के दुखों में शामिल हैं और यीशु मसीह की मौत के बपतिस्मे में भी शामिल हैं। ज्यादातर ये दोनों इस्तिलाहें, घड़ी या प्याला, आखिरत में होने वाली बातों से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि यहाँ यीशु मसीह की मौत का वक्त आ पहुंचा है, यानी वो घड़ी जिसके लिए वो दुनिया में आया था, और ये प्याला जो आखिरत से पहले गुनाहों के खात्मे से कबल उसके दर्द, तकलीफ और दुख और मौत का प्याला है और उसे वो पीने को है। इस प्याले को खुदा के गजब का प्याला कहा गया है। ये वो घड़ी है जिसके लिए वो दुनिया में आया था, लेकिन गसमनी बाग वो मकाम नहीं जहां आपको ये मौत का प्याला पीना है, और रात का ये पहर वो वक्त या वो घड़ी नहीं जिस वक्त आप अपनी जान कुर्बान करेंगे। खुदा के बर्रे को रात की तारीकी में नहीं बल्कि दिन की रोशनी में कुर्बान होना है। और फिर आप दुआ यूं अंजाम देते हुए फरमाते हैं, ए बाप, जो तू चाहता है वही हो। यहाँ उसी दुआ की बाज गश्त सुनाई देती है जो यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई। आपने अपने शागिर्दों को कहा कि दुआ करते हुए यूं कहना, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। यीशु की कही हुई बातें उसी तरह से इब्तदाई कलीसिया ने अपनाई जैसे आपने अपनी जिंदगी में उन्हें सिखाया था। वो लोग जो मुकद्दस पालूस को प्यार करते थे, जब उन्होंने उसे यरूशलेम जाने से रोका कि वहां तेरी जान को खतरा है, तू वहां ना जा, लेकिन मुकद्दस पालूस रसूल ना माना। फिर वो लोग चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। अब अगली वीडियो में जल्द हाजिर होंगे इस बाग में मजीद वाकयात को देखने के लिए और समझने के लिए।